جو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا، یہ اسی طرح سے گمراہ ہوئے. انہوں نے ایک قاعدہ سیکھا اور اس کو سب پہ فٹ کرنے لگے. سنیوں پر اس کو فٹ کرنے لگے جو مشرکوں پر اتری ہوئی آیتیں. کنٹرول. ایک منٹ رک جائیے، برا مت ماننا. دوسروں کو گمراہ بتا رہے ہو آپ لوگ، تھوڑا اپنے والوں کے حالات بھی دیکھ لیجئے. دیکھو پیر صاحب کو کیسے سجدہ کر رہے. دیکھا تم نے کیسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی، آپ کی بات سے ہم ذرا بھی سہمت نہیں ہیں اور ذرا بھی اس ویڈیو کو شیئر نہیں کریں گے. ہاں، لیکن آپ کی جو عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، آپ کو جو علم میں کمی ہے، اس کو بتانے کے لیے ہم ضرور شیئر کریں گے ویڈیو. ٹھیک ہے نا؟ ابھی پورے زمانے کے دیوبندی، اہل الحدیث والحدیث اور سیاہ رافضی سے مل کر تمام فرقے کے لوگ یہ عام کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، اس لیے ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں. سبھی فرقے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں. ذرا ایک غور کریں ایک سیکنڈ. یعنی کہ یہ ثابت ہو رہا ہے، مفہوم مخالف کہتے ہیں اسے. علماء حضرات سمجھیں گے کہ ایک مفہوم ہوتا ہے اور ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے. جن کو لغت کی معلومات ہے، بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، وہ ان کو سمجھے گا. اس کا مفہوم مخالف یہ ہوتا ہے الٹ، کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں. مطلب جو لوگ گزر گئے ان کے اعمال صحیح تھے. تو ذرا ٹٹول کر دیکھیں کہ پہلے کے لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ یہ مزاروں پہ جاتے تھے، سجدے کرتے تھے، ہم نے ان کو سدھار دیا. لیکن اب تم کہہ رہے ہو ہم نے ان کو سدھار تو دیا لیکن اعمال ہمارے خراب ہو گئے. یعنی وہ اعمال صحیح تھے جب اللہ کی رحمت رہتی تھی بندوں پر. 1400 صدی تک قبروں پہ جانا، ان کی زیارت کرنا، ان پر ان کا سالانہ عرس منانا، خوشیاں منانا ان کی پیدائش کی، اور ان کی درگاہ پر، ان کی مزار پر جو ہے لنگر بانٹنا، اور وہاں سے لگاتار چیزیں وہاں سے فیض یاب ہوتی ہیں. تو وہاں پر جو ہے ان کے قدموں کو چومنا، جس کو آپ شرک بتا رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ پہلے کا عقیدہ تھا. پہلے کے لوگ جاہل تھے، لیکن پہلے کا عقیدہ تھا. اب ہمارے اعمال خراب ہو گئے. اعمال تو بھائی پہلے سے زیادہ نمازیں اب پڑھی جا رہی ہے، پہلے سے زیادہ مسجدیں اب ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد اب ہو گئی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے حساب سے، ان کے حدیث کے حساب سے حضور فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ مسجدیں بہت ہو جائے گی، نمازی بہت ہو جائے گے، مگر ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا. جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو کیا گھنٹہ لے کر جاؤ گے جنت میں؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ نمازیں کتنی بھی پڑھ لو، ایمان کا ہونا ضروری ہے. تو آپ کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، نمازوں کا دعویٰ بھرنے والوں. حضور کی حدیث کے حساب سے. اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ کوئی بیوقوف گداللذی اگر میرے پاس آ جائے تو سمجھاؤں، لیکن میں کوشش کروں گا تمام باتیں میں میری ویڈیو سے ہی سمجھاؤں. ایمان کہتے کسے ہیں؟ اور اپنے منہ سے نہیں، حدیث مبارکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ ثقل بصری میں آئے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اور انہوں نے جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیدہ. عقیدہ، عقیدے کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، پروسیس، کہ بندے کا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ کچھ عالموں سے جہنم کی آگ دھڑکائی اور بڑکائی جائے گی کیونکہ وہ عالم ہے. جبکہ ایک جگہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ میرے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے علماء میرے دین کے امت کے وارث ہیں، میرے وارث ہیں. علماء وارث بھی ہیں اور علماء جہنمی بھی ہیں. یہ باریک نقطہ ہے، یہ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے علماء ہیں جو جہنم میں جائے گے. جبکہ علماء تو وارث ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وارث بلا کبھی جہنم میں جائے گا حضور کا؟ نہیں. لیکن یہ بطور ظاہر مسلمان ہوں گے، یہ حضور کے شان کو گھٹائیں گے. معاذ اللہ یہ حضور کے بارے میں کم علمی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے
हुजूर अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐसा कहेंगे कि ये माज़अल्लाह ये बशर है, हमारी भाई की तरह, मरकर मिट्टी में मिल गए, इनको कल की खबर नहीं थी, इनका इल्म तो चार पैर के जानवरों की तरह है। ऐसी ऐसी बातें ये करेंगे जो 1400 सदी में कभी नहीं हुई। इस पर भी एक हदीस दलालत करती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग पिछले जमाने वालों को जाहिल कहेंगे और अपने आप को आलिम कहेंगे, लेकिन गोया वो खुद जाहिल होंगे। यानी आज के जमाने के लोग जाहिल, हुजूर फरमा रहे किस एतबार से? तुम्हारे अंदर ईमान नहीं रहेगा क्योंकि अदब नहीं रहेगा। ठीक है, कदम बोसी इस्लाम से सही बुखारी से साबित है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ें। ठीक है, कदम बोसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरुल्लाह के लिए शिर्क कहा, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने कहा कि हम आपकी का कदम बोसी या सजदा करना चाहते हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा अगर जायज होता तो मैं सबसे पहले शोहर के लिए बीवी को कहता कि आप अपने शोहरों को सजदा करें, क्योंकि शोहर का रुतबा इतना बुलंद है बीवी के लिए, बीवी के आगे। यानी शोहर बीवी के लिए मजहर खुदा है, और ये बात सभी आलिम जानते हैं कि शोहर का रुतबा क्या है, वो उसका मजहर खुदा है, उसकी हर बात सराखों पर रखने वाली बात है, इतना रुतबा उसका है। लेकिन हमारी उम्मत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हराम है, मुझे सजदा करना हराम है, तो कानून तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। शिर्क उससे शिर्क वहां होगा सजदा या कदम बोसी जो गैरुल्लाह है, और गैरुल्लाह की वजाहत कुरान ने की है कि वो तुम उसे पुकारते हो जो तुम्हारी सुन भी नहीं सकता। अब सुन कौन नहीं सकता? जो मिट्टी का बुत बना हुआ है वो सुन नहीं सकता। तो कोई बेवकूफ जाहिल ये कहेगा कि कब्रों के जो मुर्दे मर गए एक बार वो कैसे सुनेंगे? तो भाई आप बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में आम बंदे को भी हम जब जो दफन कर कर जाते हैं तो कब्र का जो मुर्दा है, चाहे वो गुनाहगार हो, नेक हो, काफिर हो, मुस्लिम हो, कोई हो, कब्र में हर बंदा जाने वालों की चप्पलों की जो धीमी आवाज होती है ना वो भी सुन लेता है। यानी उनके कानों की शक्तियां इतनी बढ़ जाती है, अल्लाह ताला बढ़ा देता है, तो वो सुनता है, जिंदा रहता तब भी और कब्र में है जब भी, क्योंकि सुनेगा नहीं तो सवाल के जवाब कैसे देगा? मन रब्बु का वंदीनों का, सुनेगा ही नहीं तो जवाब कैसे देगा? और हुजूर ने कहा कि मुर्दे को गाड़ने के बाद, दफन करने के बाद जब हम वहां से जाते हैं तो मुर्दा चप्पल की आवाज भी सुनता है। तो जो सुनता है उसे कुरान ने गैरुल्लाह नहीं कहा, गैरुल्लाह उसे कहा कुरान ने कि जो सुन भी नहीं सकता, उसे मत पुकारो जो तुम्हारी सुन नहीं सकता। कब्रिस्तान के बाहर लिखा रहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्र वालों आप पर सलामती हो। ठीक है, तो मुर्दे को कोई सलामती की दुआ देगा भला? सोचने वाली बात है। और इसमें कैटेगरियां हैं मुर्दों की, मैं अगली वीडियो में भेजूंगा, बनाऊंगा, कैसे कैसे कब्र में दफन हुए हैं, उनकी क्या क्वालिटियां हैं, क्या कैटेगरियां हैं, क्या मकामात है, समझने की जरूरत है, इस्लाम का इल्म हासिल करने की जरूरत है। ना कि कौवे ने कान ले गया किसी ने कहा तो उसके पीछे भागे, और कान को ना देखते हुए कौवे के पीछे भागे, ऐसा ना करें। इस्लाम को इल्म हासिल करना सबके ऊपर वाजिब है, फर्ज है। कोई किसी फिरके के बारे में अगर जरा सी ये बता दे रहा है कि देखो ये कदम चूम रहे हैं, तो आम आवाम को ये बता दे शिर्क है, आम आवाम भटक जा रही है, यार ये मुशरिक फिरका है, यहाँ पर शिर्क हो रहा है। जबकि आकाए दो जहां, आकाए कायनात, रसूल कायनात,
हुजूर अकरम नूर मुजस्सम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि आखिरी खुतबे में आपने फरमाया कि मेरी उम्मत, अब मुझे कोई डर नहीं कि मेरी उम्मत शिर्क करे, यानी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, हाँ मगर दुनियादार जरूर हो जाएगी, उम्मत शिर्क नहीं करेगी, ये हुजूर कह रहे हैं, ठीक है। और आप कह रहे हो कि उम्मत शिर्क कर रही है। इसी पर किसी साहबी ने भी पूछा था, क्या एक दूसरे पर जब शिर्क के, नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि उम्मत एक दूसरे पर शिर्क का फतवा लगाएगी। बहुत प्यारी हदीस है। तो साहबा ने पूछा कि वजाहत कर दे, जब उम्मत एक दूसरे पर शिर्क का फतवा लगाएगी तो उसमें मुशरिक कौन होगा? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तोहमत लगाने वाला मुशरिक होगा, यानी आप जिसको शिर्क मुशरिक बोल रहे हो ना, ये मुशरिक कर रहे हैं, आप खुद मुशरिक हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी के हिसाब से, हुजूर की जबान तो ऐसी थी कि जिसे जन्नती कह दे वो जन्नती हो जाए, और जिसे मुशरिक कह दे, जो आने वाले जमाने में भी किसी को मुशरिक कहेगा ना, वो खुद मुशरिक हो जाएगा, क्योंकि मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, ऐसी हदीस है सरकार की। समझे चुल्लू लुल्लू? आपको इल्म की बहुत कमी है, आप सुन्नी हनफी बरेलियों के पास आए, मेरी तो राय है, क्योंकि कोई आलिम किसी की कब्र में बचाने नहीं आएगा। आप हमारे उलमा के पास आए, सवाल करें, दीन को समझे और सीखे, और कहीं गलत लग रहा है तो आप अहले हदीस या देवबंदी के पास जाए, वहां भी सवाल करें, पूछे, समझे, जाने उसको। दीन किसी के बाप का नहीं और किसी के घर का नहीं है, दीन अल्लाह और रसूल का है, और इसमें हमें इल्म हासिल करने की जरूरत है, तभी हम अकीदे पर आएंगे। हमारा अकीदा ही खराब है तो नमाजें काम नहीं आएगी। इसीलिए सरकार ने फरमाया था कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक गिरोह ही जन्नत में जाएगा। अब हर गिरोह हर फिरका नमाज पढ़ रहा है, लेकिन उनको नमाज नहीं बचाएगी, क्योंकि अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। आप उनकी गुस्ताखियां करोगे तो गुस्ताखी रसूल की तो सजा ही मौत है, तो उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो हुजूर का अदब, उनके बारे में अकीदा क्या होना चाहिए। आप बयान सुने सुन्नियों का, अकीदा अहले सुन्नत नाम से, कि सुन्नियों का क्या अकीदा है और कहां से उन्होंने अकीदा लिया है। कुरान और हदीस और सुन्नत, सहाबाए कराम का फहम कैसे उन्होंने समझा है। और जो सवाल है वो सवाल भी आप सुन्नियों से करें, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो भाई, ऐसा कहने वाला जो उम्मत को मुशरिक कहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खुद मुशरिक हो गया, तो इस हिसाब से आप खुद मुशरिक हो गए, और आप मुशरिक हो गए तो शिर्क की सजा तो अल्लाह तो शिर्क माफ ही नहीं करने वाला है, तो यानी आपकी माफी नहीं होगी, तौबा भी नहीं होगी, आपका बेड़ा गर्क हो गया है। किसी को मुशरिक कहने से पहले सोचो। अरे देवबंदी इतने देवबंदी हैं, देवबंदी इतने बड़े देवगंदी हैं, गंदी, बुरा लग जाएगा। ये कहते हैं, अगर सुन्नियों ने अगर इनको कह दिया कि आपने ये कुफ्र कर दिया, हुजूर की शान में आपने ऐसा कह दिया, आपके उलमा ने ऐसा कह दिया कि हमारे भाई की तरह है, तो उनकी शान बहुत आला है, आपने कुफ्र कर दिया। अगर सुन्नी ने ये कहे तो ये एक हदीस पेश करते हैं कि किसी काफिर को भी काफिर न कहो, यानी तुम काफिर से बढ़ के किसी को मुशरिक कह दो वो चलेगा, लेकिन आपको कोई काफिर ना कहे। या आप अपने आप पर कुफ्र का फतवा हटाने के लिए हदीस पेश करते हैं कि किसी काफिर को काफिर ना कहो। और सरकार ने ये क्या हिकमत के तहत कहा था कि किसी काफिर को भी काफिर ना कहो? उसमें हिकमत ये थी कि काफिर के मुंह पे काफिर ना कहो, ताकि उसकी दिल आजारी होगी। अगर कल को उसका दिल पलटना हो, इस्लाम में आना हो, तो दिल आजारी के बिना पर वो कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन काफिर तो काफिर है, क्योंकि हुजूर ने अगर मना किया है हदीस में, तो अल्लाह ने हुक्म दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद कि कुल या अय्युहल काफिरून, जाओ और उन काफिरों से कह दो। यानी अल्लाह काफिरों को काफिर कह रहा है और काफिर कहने से तुम मना कर रहे हो, तो फिर उस आयत को कुरान से निकाल दोगे क्या मनसूख हो गई? है किसी में हिम्मत उस आयत को मनसूख कहने का कि वो आयत मनसूख है? फिर उसका नासिक बताओ। इल्म हासिल करो मेरे भाई, एक दूसरे को शिर्क मुशरिक छोटी छोटी बातों पर आप गुमराह कहते हो। कोई कवाली बजा रहे, बोले तुम्हारे सुन्नी देखो कवालियां बजा रहे, सुन्नी ढोल बजा रहे,
सुन्नी मज़ारों पे जा रहे, सजदे कर रहे, मज़ारों को चूम रहे, जो भी कर रहे हैं मेरे भाई। हर देवबंदी पारसा नहीं, हर अहले हदीस पारसा नहीं है। और वो जो कर रहे हैं ना, उनकी सब दलीलें हैं सुन्नियों बरेलियों की हमारे पास, कि वो कहां से कर रहे हैं, क्या उसकी दलाइल है। अगरचे वो सहाबा के जमाने में नहीं भी हुआ, तो भी इस जमाने में वो बिदत नहीं है। बिदत के टॉपिक पर एक मैं बहुत बड़ा वीडियो, एक बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच अपलोड करूंगा कि बिदत समझाना बहुत जरूरी है उम्मत को, क्योंकि इनको बिदत की मालूमात ही नहीं है। बिदत कहते किसे हैं? काश उम्मत को यह पता चल जाए कि बिदत कैसे कहते किसे हैं, तो आधी गुमराही यूं ही खत्म हो जाएगी। समझे? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में पढ़ता नहीं हूँ, मुझे टाइम नहीं रहता है, मैं इतना रिकामा नहीं हूँ। कोई कमेंट में कुछ लिख रहा है तो ये उम्मीद से ना लिखे कि मैं उसका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मुझको काम बहुत रहता है, मेरा बिजनेस में मेरा टाइम जाता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।